Assalamu alaikum and welcome back, and course, you know, operation strategy, the code is 563 and I am your professor Dr. Anil Salman. I hope you people are doing well, and the same old routine. I don't have to tell you that we have to do the recap of lecture number 23 that we covered last time. Now in 23 what we talked about was about capacity. Abhi capacity ka hai, lekin in today's lecture I came up with a different procurement strategy jo ke aapki performance ko improve bhi karti hai. But anyway, before going further, what is in this lecture, let us see that what we did in the last time. That the first question by which the lecture opened was कि why do organizations most often do process improvement. अब हमने कहा था कि process is basically आपका जो होता है set of steps होते हैं, and this process cannot stay forever. Why the process cannot stay forever is that आपके जो external factors होते हैं, internal factors होते हैं, they are not static, they are dynamic. और जिस तरह वो change ला रहे होते हैं वैसे वैसे हमने भी अपने आप को change करना होता है. And this change is not usually the negative change, it is a positive change कि हमारी performance improve हो. Because as our processes are improving, it is a general notion and it is a proven one कि वो हमारी productivity भी improve करता है और हमारे profit margins को भी increase कर देता है. That's why process improvement is necessary. Take about any example, like talk about Lawrence Spur, talk about Coca-Cola, Pepsi, IBM, Microsoft. These are old companies now. So now these old companies have improved their processes remarkably. मैंने आपको निराला sweets की example दी थी. The same मिठाई वाला who used to make मिठाई from hands, the grandson actually came from USA और उसने क्या कर दिया, सारे process को change कर दिया, and it became all the मिठाईज are not being made by वो जो कहते हैं human touch नहीं होता उसके अंदर, it's basically all being made by machines. So therefore that is a process improvement. So process को जब हम बात करते हैं तो it's not a complex thing, but उसकी जो implementation होती है, you have to understand कि जी कैसे आपका process improve हो सकता है और आपने कौन से tools use करने हैं. Second हमने question जो पूछा था, that was basically that why should organizations do process improvement. Obviously it's अभी जो मैंने starting में मैंने इसका reason बता दिया था that we need to improve process, क्योंकि आपका competition है, आपकी external environment है, और आपकी जैसे जैसे आपकी market की में demand increase हो रही है आपके product की, तो आपने अपनी capacity को भी improve करना है. अब capacity not at the expense of your cost, कि आपकी cost भी बढ़ जाए, बल्कि वहाँ पे हमने क्या लेके आना था, economies of scale लेके आना था कि आपकी जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है. सो देयरफॉर when we look at it, so it is not कि जी organizations कहती हैं कि जी हम अगर process improve किए बगैर we can actually stay alive. No, it cannot happen. So organizations ने अपना process improve करना है और करते रहना है. And if you track record किसी भी organization का देख लो, they are not the same the way they started their businesses. They have remarkably changed, and it's not small change, it is a big change. Now हमने दो चीज़ें पढ़ी थी. One was your methods and another one was your approaches. Methods के अंदर we talked about कि process improvement के methods हैं कुछ. अब उन methods के अंदर ISO 9001 है, like International Organization for Standardization, कि आप अपने आप को do what you say what you do. इसके अंदर जुरान, क्रॉसबी और इनकी philosophies आ जाती, डेमिंग के आ गए थे. Then we talked about CMMI, that is Capability Maturity Model Integrated. इसके मैंने आपको different steps बताए थे कि पहला product development में होता है, फिर process में होता है. Then how do you actually improve your this maturity model integration. थर्ड आपका आ जाता है Balraj Awards, जो कि आपकी बेसिकली लीडरशिप क्वालिटीज़, आपके मैनेजमेंट स्किल्स, एंड दैट आल्सो कम्स इनटू द MB and QA. एंड लास्ट वन कम्स योर ISO 15504, इसको हम स्पाइस भी कहते हैं. नाउ दीज आर सम ऑफ द मेथड्स, ठीक है, जिनको हम या मॉडल्स आप कह लें, जिनको हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू हैव परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, इन ऑर्डर टू हैव प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, इन ऑर्डर टू हैव परफॉर्मेंस enhancement. Moving on to the next one. Apart from these models, we have some approaches. Approaches क्या होती हैं कि जी आपने holistically देखा सारे process को और उसमें आपने लेके आए total quality management, ठीक है, Six Sigma आपने introduce करवाया, उसके बाद आपने lean management लेके आए. Now these are basically the approaches that are improving your process management, that are improving the productivity. Now comes कि जी अब ये जो है improvement है, either it can be evolution or it can be revolution.
एवोल्यूशन वर्सेस रेवोल्यूशन का मैं इस वजह से कहता हूँ कि ब्रेक थ्रू भी एकदम हो सकता है, ठीक है, कि आपने एकदम फॉर एग्जांपल बैंक्स में आप देख लें, अर्लियर बिफोर द आईटी रेवोल्यूशन ये बैंक्स में बड़े बड़े खाते होते थे, रजिस्टर्स होते थे, एंड इन दिस वे दे यूज्ड टू टॉक अबाउट दीज इम्प्रूवमेंट। एकदम आपका कंप्यूटर आता है और वो सारे प्रोसेस को क्या उसने कर दिया, रेवोल्यूशनाइज कर दिया। नो, दैट इज़ अ ब्रेक थ्रू। पीपल आर यूजिंग सम प्रोएक्टिव मेजर्स मलेरिया के लिए, ठीक है, नाउ दैट इज़ आपने मेडिसिन एकदम ले आए और उससे एकदम मलेरिया आपका ख़त्म हो गया, दैट इज़ ऑल्सो अ ब्रेक थ्रू कि एकदम आपका चेंज आ जाए। नंबर 2 आपका हो सकता है दैट इज़ कंटिन्यूस। एज द टाइम इज़ पासिंग ऑन आपकी इंप्रूवमेंट उसके साथ साथ आ रही होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के अपने लर्निंग कर्व होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस अपनी मिस्टेक्स के साथ लर्न कर रहे होते हैं, सो दैट्स व्हाई आपकी एकदम आपकी इंप्रूवमेंट आती है। देन कम्स दैट ये जो है कि इधर आपने एकदम ब्रेक थ्रू करना है या आपने कंटिन्यूस करना है, दैट्स योर चॉइस। बट साइमल्टेनियसली भी हो सकता है, बाय पार्ट्स भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइमिंग, that depends upon the demand, that depends on the need, and that depends upon your capacity कि जी for example change तो आप ले आए, is your employees ready for that? Because employees में जो हमने last previous lectures में पढ़ा था कि change अगर लाना है तो आपने employees को prepare भी करना होता है। You can't just say कि जी कल से आपने uniform पहन के आना है, you can't just say कि जी कल से आपने ये काम करना है, can't just say कि जी आप पहले manual सारे वो data entries कर रहे हैं, कल से आप computers कर रहे हैं, because जब तक until unless your staff doesn't understand कि जी आपने वो क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट कैसे लानी है, क्या आपका विजन है, किस तरीके से आप इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इस इम्प्रूवमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। सो देयरफॉर यू नीड टू इन्वॉल्व पीपल इन द प्रोसेस। सो अब द क्वेश्चन कम्स दैट मैच प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मेथड्स टू द नीड्स। देयर आर सो मेनी methods, there are so many we talked about, we have discussed quality enhancement के लिए काफ़ी ज़्यादा हमने methods discuss किए हैं, but the point is कि the question is कि कौन सा आपने method apply करना है with reference to आपने किस किस्म की improvement लेके आनी है। You can't apply all the methods simultaneously, you can't apply all the methods to one problem, ठीक है। So there are different kinds of what is it कहते हैं visions, there are different kinds of objectives what you want to achieve at this point of time. So therefore maybe at the moment quality is my objective, at the moment speed is my objective, at the moment cost minimization is the objective, at the moment waste minimization is my objective. So depending कि आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव है उस लिहाज से आप वो मेथड या अप्रोच आप अप्लाई करते हैं। यू कांट जस्ट रैंडमली से कि जी सारे TQM अप्लाई कर रहे हैं तो मैं अभी TQM अप्लाई करूँगा, मे बी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ नॉट राइट नाउ द राइट आंसर टू योर प्रॉब्लम। सो देयरफॉर आपने अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, एंड देन आपने देखना है विच technique you have to use, which method you have to use. Once you are comfortable in applying that technique or method, then you are actually going to get into this process improvement thing. अगर आपने टेक्निक गलत लगा ली तो ठीक है, मे बी उसका आयोटा इफेक्ट आ जाए। ऐसी पॉलिसीज़ को भी कहते हैं नो रिग्रेट पॉलिसीज़, ठीक है। क्वालिटी अगर इम्प्रूव कर रहे हो दैट इज़ फाइन, बट दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ योर एजेंडा, ठीक है। क्वालिटी पहले ही आप अपना, यू आर ऑलरेडी एन ISO सर्टिफाइड कंपनी, व्हाई यू आर अगेन सेइंग कि मैं क्वालिटी पे फोकस करना चाह रहा हूँ, until unless there is no problem into it. Now comes कि जी आपने फिर methods कैसे select करने हैं। There are different tools by which you can apply. So the tools are कि जी आप decision matrix बना सकते हो, force field analysis कर सकते हैं, mind maps बना सकते हैं in order to decide कि आपने कौन सा tool use करना है at the moment for the process improvement. Now ladies and gentlemen, that was all about process improvement, कि हम अपने process को कैसे improve करते हैं। आज मैं आपको एक story सुनाना चाहता हूँ, that is basically Deloitte की। Deloitte is a big company, and if you are in US, if you are in the West, पाकिस्तान के भी अंदर है उनका काम हो रहा है, but what you are looking into is that आपने अगर Deloitte के अंदर काम करना है, so that is a dream job. That's a consultancy, auditing, costing, बहुत सारे वो काम करते हैं। It's basically a service-based organization. अब इसके अंदर एक वो है आपकी strategy procurement की। प्रोक्योरमेंट क्या होता है कि आपने अपना सामान कैसे लेके आना है, किस कॉस्ट पे लेके आना है, कहाँ से आपने लेके आना है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्रूशल पार्ट्स फॉर योर
process enhancement, for your process improvement कि जी पहले मैं सिर्फ सारा होम ग्रोन चीज़ें कर रहा था, मैं कोई बाहर से नहीं लेके आ रहा था, लेकिन जब आप प्रोक्योर कर रहे हो दैट हैज़ एक्चुअली रिड्यूस्ड द कॉस्ट. सो अब आपने अपने उस प्रोसेस को किस तरह बेहतर बनाना है. डिलॉयट ने क्या किया, इसने कुछ 6 स्टेप स्ट्रैटेजी अपनी बनाई हुई है एंड दे कॉल इट एज अ विनिंग स्ट्रैटेजी. सो टुडे एज अ केस आई वांटेड टू शेयर कि डिलॉयट क्या उसके अंदर करता है. ठीक है. नाउ अब इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग, डिलॉयट बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्रोच. अब क्या होता है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या होता है, दैट इज बेसिकली procurement consists of cycles of sourcing and buying transactions which depend upon each other. ठीक है, अगर आपको ये 2 साइकिल नज़र आ रहे हैं, एक साइड पे सोर्सिंग हो रही है और एक साइड पे आपकी बाइंग हो रही है, और ये साइकिल आपके क्या है, कंटिन्यूस साइकिल्स हैं. नाउ there are let me just explain the table that you are looking in the slide. Number 1, sourcing को अगर हम देखें तो sourcing में आप क्या करते हैं, you have to manage your demand, you have to define sourcing strategy, you have to qualify your suppliers, you have to negotiate the contract, you have to manage the contract, and you analyze the spend. Buying के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, identify the need, create requisition, route approval, create purchase order, shipping, receive goods and services, payments and settlement. अब 2 किस्म की होती हैं, एक होता है मनी ऑन द टेबल और एक होता है मनी इन द बैंक. मनी ऑन द टेबल का क्या मतलब होता है, दैट इज बेसिकली आइडेंटिफाई अ नीड एंड नेगोशिएट एंड मैनेज कॉन्ट्रैक्ट्स. और न्यू एंड बेटर कॉन्ट्रैक्ट रिलेट्स टू अपॉर्चुनिटी टू सेव मनी. मनी इन द बैंक क्या होता है, आइटम्स आर परचेज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. नाउ लेट्स गो वन बाय वन, व्हाट इज हैपनिंग. नाउ टॉक अबाउट बाइंग. पहले हम बाइंग की तरफ देखते हैं. बाइंग में हमने क्या किया, सबसे पहले आपने अपनी नीड को आइडेंटिफाई किया कि भाई मेरी ज़रूरत क्या है. फॉर एग्जांपल यू नीड अ न्यू मशीन एंड यू थिंक कि भाई इस मशीन के बगैर अब काम नहीं हो सकता, तो आपने अपनी नीड को एनालाइज किया. दैट ओके, देयर माइट बी अ नीड बट इट मे नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू something that you have acquired now. You can postpone that need, but once you start analyzing the need, you say, now this is the right time, I need to get this product, I need to acquire this machine, I need to go for this market opportunity. तो फिर आप क्या करते हो, ये जो process होता है where you are actually analyzing your need. Once you have analyzed your need, अब आप क्या करते हो, you create your requisition. आपने अब requisition भेजनी होती है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, then you give the justification क्यों चाहिए, and everything down you are creating the requisition. उसके बाद फिर आपको route approval लेनी होती है कि मैं यहाँ से लूँगा, ये होगा, ये सारा चीज़ होगी, then that is basically your route approval. उसके बाद आपका परचेज ऑर्डर डेवलप होता है, क्रिएट परचेज ऑर्डर. उसके बाद जैसे आपका परचेज ऑर्डर डेवलप हो जाता है, फिर आपको शिपिंग की जाती है उस प्रोडक्ट की, एंड देन यू रिसीव योर गुड्स. यहाँ जो आपने सर्विस है, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या आपकी नीड थी और आपने किस तरीके से उसको किस तरीके से आपने उसको राउट किया था, एंड देन आपकी पेमेंट एंड सेटलमेंट हो जाती है. आपको जैसे ही गुड्स रिसीव हो जाते हैं आप उनको भेज देते हैं, एज वी से इन द लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर या LCs जब आप खोलते हैं. देन कम्स योर सोर्सिंग. सोर्सिंग में आप क्या करते हैं, दैट इज बेसिकली दैट यू आर asking someone to get it for you. Ab they are doing is you analyze spend, then you manage the demand, then you define your sourcing strategy कि जी आप कहाँ से source करेंगे. फिर आप अपने you can't ask anyone कि जी मुझे ये वाली चीज़ चाहिए तो आप 5 suppliers से ले लेते. No, you need to have your own quality standards, you need to have your own वो जैसे कहते हैं well defined procedures कि जी अगर ये मेरा minimum criteria है, if these people are following these particular strict वो जैसे कहते हैं measures follow करें, तब मैं इनसे product लूँगा. As I talked about Starbucks क्या करता है that उसने उसको कॉफ़ी बीन्स चाहिए या उसको मिल्क चाहिए, तो उसने बड़े सेलेक्टिव तरीके से अपने ये जो हैं
अपने सप्लायर्स को चूज़ किया हुआ है, ठीक है। आप अपने सप्लायर्स को क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद देन यू स्टार्ट निगोशिएटिंग। जिस तरह सप्लायर्स अपने बिड्स भेज देंगे ये हम कर सकते हैं, ये हमारी प्राइस है, एंड देन यू स्टार्ट निगोशिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट कि देखो हम आपके साथ काम करेंगे, इतनी आपने प्राइस भी देनी है, जब भी हमें चाहिए होगा आपने ये वाला काम करना है। सो दिस इज़ बेसिकली आपने अपनी जो प्रोक्योरमेंट है आपने उनको कह दिया जी आप हमें ये सारा रॉ मटीरियल दिया करेंगे। सो दैट इज़ बेसिकली दिस इज़ द निगोशिएटिंग प्रोसेस, क्योंकि यू डोंट वांट टू निगोशिएट जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपने उनको निगोशिएट करना होता है। यू डोंट जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज़ एंड देन यू स्टार्ट मैनेजिंग द कॉन्ट्रैक्ट। 1 साल का हो सकता है, 6 मंथ्स का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके मार्केट की नीड कैसी है, ठीक है। उसके बाद देन आई टॉक्ड अबाउट कि जी ये जो होता है सोर्सिंग एंड द मनी इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। Identify the need and negotiate and manage contracts. New or better contract creates the opportunity to save money. क्योंकि अगर आप खुद कर रहे हैं तो इसके अंदर ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती हैं, तो आप आउटसोर्स कर देते हैं। GE, जनरल इलेक्ट्रिक, जनरल मोटर्स, ये सारे क्या कर रहे हैं, इन्होंने अब आउटसोर्स कर दिए हैं, खुद नहीं वो मोस्टली पार्ट्स बनाते हैं, ये आउटसोर्स करके चीपर कॉस्ट के ऊपर, चीपर प्राइस के ऊपर ले लेते हैं एंड देन दे स्टार्ट जस्ट असेंबलिंग इट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्सिंग थिंग्स। Now, strategic sourcing is a collaborative and systematic process. अब strategic sourcing क्या होती है, ठीक है। अब इसके अंदर 5 चीज़ें हैं strategic sourcing के अंदर। Number 1, the goal is to simultaneously, number 1 क्या है, reducing the total cost of materials and services for an organization while increasing quality and service। आपका जो मेन गोल है कि क्यों आपने किसी को कह दिया कि जी आप मुझे प्रोवाइड कर दो, आई वॉन्ट मेक इट, या आई वॉन्ट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द रॉ मटीरियल ऑल्सो, आप मुझे रॉ मटीरियल दे दो। इट्स बेसिकली कि जी आपकी क्या हो जाती है, कॉस्ट क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। नेस्ले को देख लें, जो मिल्क पैक के जो आप देखते हैं, दूध इनका अपना नहीं है, या वेंडिंग है, ये डिफरेंट लोगों से दूध लेते हैं, फिर अपना प्रोसेस करते हैं, पास्चराइजेशन ये सारा फिर करते हैं, ठीक है। तो अगर वो खुद अपना वो काउज वगैरह रखे हैं एंड दे स्टार्ट देयर ओन मिल्क फार्म्स, तो मे बी वो एक्सपेंसिव पड़ जाए। ऑन द अदर साइड इफ़ यू लुक एट प्राइमा, इफ़ यू लुक एट देयर इज़ अनदर कंपनी अनहार, Now these two they have their own farms और वहाँ से ये दूध लेके आते हैं। अब दोनों के कॉस्ट स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, फ़र्क होंगे, दोनों की स्ट्रैटेजीज़ क्या है, फ़र्क है, दोनों मार्केट में जिस तरीके से वो आते हैं, वो जो द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज़ डिफरेंट। सो देयरफॉर नंबर 1 क्या है, आपने जो गोल अचीव करना है कि आपकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, लेकिन कॉस्ट, द रिडक्शन इन कॉस्ट does not mean that you are compromising with the quality. Quality आपकी बेहतर होनी चाहिए, बुरी नहीं होनी चाहिए when you are reducing the cost. Similarly, what they do is, for example, McDonald's कहता है जी अब I have reduced the price, तो this doesn't mean कि उसने quality भी क्या कर दी है, बुरी कर दी है। मैं भी quantity कम कर दे, क्वालिटी वो बुरी नहीं करता, ठीक है। बिकॉज अगर क्वालिटी उसने बुरी कर दी, क्वालिटी के साथ उसने अपनी कॉस्ट का ट्रिकल डाउन किया, तो देन पीपल आर नॉट गोइंग टू डिमांड देयर प्रोडक्ट। सो देयरफॉर व्हाट वी सी इज कि जी नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने अपनी कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को कम करना है, लेकिन आपकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो वही बरकरार रहनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट हम क्या करते हैं, लेवरेजिंग इंटरनल एक्सपेंडिचर्स वाइल रैशनलाइजिंग द सप्लाई बेस, ठीक है। आप अपने इंटरनल एक्सपेंडिचर्स क्या कर रहे होते हैं, वो लेवरेज कर रहे होते हैं, और आप अपनी जो सप्लाई लाइन होती है या आपकी जो सप्लाई बेस होती है उसको आप क्या कर रहे होते हैं, रैशनलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। नंबर 3, optimizing the internal and external supply chain while managing the inventory levels on a commodity by commodity basis, not one size fits all. अब जो आपने अपनी सप्लाई चेन को देखना है, यू आर नॉट जस्ट डूइंग इट फॉर ऑल द कमोडिटीज़। आप हर कमोडिटी को देखते हैं कि जी मैंने किस कमोडिटी के लिए सोर्सिंग करनी है, किस कमोडिटी के लिए सोर्सिंग नहीं करनी। ज़ारा गिवन यू अ नंबर ऑफ टाइम्स इट्स एग्जांपल्स, उसकी सप्लाई चेन बहुत अच्छी है, ठीक है। अब ज़ारा क्या करता है, जो उसने मैस प्रोडक्शन करनी होती है, मैस प्रोडक्शन जिन आइटम्स की करनी होती है, वो ये भेज देते हैं चाइना के अंदर, दैट ओके यू प्रोड्यूस, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर डिज़ाइन के क्लोथ्स हमें थाउजेंड्स में हमें चाहिए। सो
जितना आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतनी आपकी कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन जो आपके डिज़ाइनर क्लोथ्स होते हैं वो ये क्या करता है, वहीं पे स्पेन के अंदर इधर उधर करीबी वेंडर्स को दे देता है दैट ओके यू मेक इट और आई विल मेक इट। लेकिन जो मैस प्रोडक्शन वाले हैं वही चाइना भेज देता है, मैस कस्टमाइजेशन वाले खुद बनाता है। सो दैट वेरीज फ्रॉम कमोडिटी टू कमोडिटी। सो नंबर 3 इज ऑप्टिमाइजिंग द इंटरनल and external supply chain while managing the inventory levels on a commodity by commodity basis. Number 4 क्या है, improving organizational awareness of the total cost of ownership while reducing excessive levels of requisitioning and complexity. ठीक है. Number 5, बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशंस कंपेटिटिव पोजीशन। यानी हमने ऑर्गेनाइजेशन को क्या लेके आना होता है, वी हैव टू ब्रिंग इट टू अ कंपेटिटिव लेवल, वी हैव टू क्रिएट कंपटीशन थ्रू कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड सप्लायर एडेड वैल्यू। ये वही वाली बात आ गई जो मैं लास्ट लेक्चर में बात कर रहा था, दैट वी हैव टू हैव कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ठीक है, बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस कंपेटिटिव पोजीशन। अब तो एक हाथ आ गया और हम आगे हैं, वी टॉक्ड अबाउट दैट इट्स अबाउट सस्टेनेबल कंपेटिटिव पोजीशन। कि जी कंपेटिटिव पोजीशन ये ना हो कि फॉल के अंदर आपने कर ली या स्प्रिंग के अंदर कर ली, 2015 के अंदर कर ली, इन 2016 के अंदर एक साल आपकी कंपेटिटिव पोजीशन। नो, इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल, इट हैज़ टू रिमेन फॉर एवर। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड टू हैव कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन योर प्रोसेस, इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इन योर पीपल। नाउ स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग जो होती है, दैट एड्रेसेस द टोटल कॉस्ट ऑफ द products and services that a company produces. अब यहाँ पे आप दो चीजें देख रहे हैं, ठीक है, there's a ship going on, ठीक है, and deep inside the water you would see that there are different things. Number 1, एक आपकी है actual opportunity जो आपकी actually जो आपको मिल रही है, और एक आपकी होती है perceived opportunity. अब जो है आपकी जो actual opportunity है that is in the water. अब एक्चुअल अपॉर्चुनिटी के अंदर आप क्या देख सकते हैं कि जी आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है वो किस तरीके से कम हो सकती है। नंबर 1, आपकी ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस, आपकी रिटायरमेंट प्रैक्टिसेस, आपके मैनेजमेंट सिस्टम्स, आपके इन्वेंट्री प्रैक्टिसेस, आपके इंटरनल प्रोसेसेस, आपके इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, डिमांड ड्राइवर्स और आपकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। और जो आपकी परसीव्ड अपॉर्चुनिटी है कि जी मैं अपनी कॉस्ट को इस तरीके से कम कर सकता हूँ, इफ़ आई एम एक्चुअली हैविंग अ गुड सोर्सिंग स्ट्रैटेजी, वो क्या है आपकी परचेज प्राइस, कि किसके ऊपर आप वो गुड खरीद रहे हैं। मैंने एक प्रोडक्ट लिया एक इनपुट लिया 10,000 के अंदर। अब वो जो 10,000 है, यस, अगर मैं वो सारा खुद बनाता तो मे बी दैट वुड हैव कॉस्टेड मी 12,000, सो आई हैव एक्चुअली सेव्ड 2,000। ठीक है, सो मेरी जो एक्चुअल अपॉर्चुनिटी है वो ये वाले सारे मेरे फैक्टर्स कम हो जाते हैं इफ आई स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इट माई सेल्फ। सो देयरफॉर आई डू द स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट में कर लेता हूँ। Procurement, sourcing and procurement value proposition. Procurement improvements may offer a less disruptive, more effective opportunity to impact the bottom line. ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो सकता है। नंबर 1, क्या जी 4 methods to increase pre-tax income by 25%। क्या आप अपनी इनकम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं pre-tax, अभी टैक्स नहीं उसके ऊपर लगा। नंबर 1 method, reduce procurement costs, reduce labor costs, reduce other costs, and increase the sales. Very much obvious. ठीक है, these are the 4 methods. But as I said, हमारा जो focus है that is on the reduction on the total cost. So reducing the total cost through more effective procurement may, ठीक है, वो क्या करता है, may require less effort and expense than increasing sales through traditional methods। कि जी अगर आप सेल्स को इंक्रीज करके अगर आप रेवेन्यू इंक्रीज करना चाह रहे हैं, दैट वाज द कॉमन वो जिसे कहते हैं नोशन अर्लियर, लेकिन बेहतर कौन सा है अगर आप अपनी प्रोक्योरमेंट कर लें फ्रॉम बेटर वेंडर। Procurement may be sustainable due to new contract agreements। कि जैसे जैसे आपका कंपटीशन हो रहा है, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को मैनेज कर रहे होते तो आपको चीज़ें बेहतर मिल जाती हैं। एंड बी लेस डिस्ट्रप्टिव दैन रिड्यूसिंग द हेड काउंट। कि आप डाउन साइजिंग करें उससे आप अपनी वो कॉस्ट्स को बचा रहे हैं। इट्स बेटर टू हैव बेटर प्रोक्योरमेंट। सो द थिंग इज कि
इफ़ यू आर, अब अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप देखें तो मेरे ख्याल में विदाउट एग्जैजरेशन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बीइंग आउटसोर्स्ड, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप सोर्स कर रहे होते हैं, दूसरों से ले रहे होते हैं. इवन यू व्हेन यू सी द वेंडर्स हु सेल रियली गुड, कमिंग टू डाउन टू अ बेसिक एग्जांपल, ये जो फूड वेंडर्स होते हैं, ठीक है, what are they doing also, that they are not making the things themselves. यानी I'll give you दही भल्ला, ठीक है. Now the bhallas are not being made by the people themselves, ready made आपके बन रहे होते हैं, वो वहाँ से लेके उसने different ingredients mix किए और आपको दे दिया, and he is actually charging you the price of all of it, but he is not making it. क्योंकि remember as an economist we also talk about, एक तो आपकी explicit cost होगी ना, उसमें सर आपने ट्रांसपोर्ट, अब कई कंपनीज ऐसी हैं तो वो कहते हैं आपको आने की ज़रूरत नहीं, you just put on the order, हम आपको खुद सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. सो आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बच गई, आपकी हैसल कॉस्ट बच गई, आपको जो उसके लिए मटेरियल खरीदना पड़ना था वो आप नहीं खरीद रहे, अब आप सिर्फ आपको प्रोडक्ट मिलता है, आप असेंबल करते हो एंड यू जस्ट ऑफर इट टू योर कस्टमर. तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है. बट वंस वी आर लुकिंग इनटू इट कि अगर तो ये जो आपकी प्रोक्योरमेंट अच्छी है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मैनेजेबल हैं, फिर रिमेंबर सप्लाई चेन के अंदर मैंने कहा था जस्ट डोंट थिंक दैट इट इज़ अ ट्रांजैक्टरी रिलेशनशिप. आपका जो सप्लायर्स के साथ, ये सप्लायर्स वही है जो आपको सोर्स कर रहे हैं ना आपकी सारी चीज़ें, जिनको आपने कहा हुआ कि जी आप ही मुझे रॉ मटेरियल दे रहे हैं. बट इफ़ यू हैव अ गुड सस्टेनेबल रिलेशनशिप, इफ यू आर मैनेजिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स वेरी वेल, गिव देम द फीलिंग दैट दे आर द पार्टनर्स. वंस दे हैव, तो आपका कभी भी आपकी कॉस्ट कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होती. Now, significant opportunities have been identified in most industries. अब कौन कौन सी industries के अंदर आई हैं? Like these are different industries. Enterprises often derive significant savings from making small improvements in supplier facing processes and spend management. अब इसके अंदर आपकी आ जाती हैं aerospace, beverage, chemical, electronics, engineering, mining, petroleum, pharmaceutical, semiconductor, telecos, transportation and utilities. And you can see the change in the profitability, purchases of percentage purchases of sales and current profit of sales. और अगर आप देखें कि कितना कोई भी negative में नहीं जा रहा, all are going in positive, ठीक है. So you have to be a smart buying अगर आप करते हैं, if you have done a good वो जिसे कहते हैं selection of suppliers, managing good contracts, procurement अगर आपकी अच्छी तो obviously it will give you a better sales. Now, strategic sourcing delivers greater value than traditional purchasing approaches. अब strategic sources versus traditional ये जो है purchasing, ठीक है. Number one, ट्रेडिशनल जो आपकी परचेजिंग होती है उसके अंदर आर फोकस इज मोस्टली ऑन द टैक्टिकल फोकस होता है हमारा, इट्स ऑन ट्रेडिशनल टेक्निक्स. और जो स्ट्रेटेजिक आपकी जो होती है सोर्सिंग, उसके अंदर हमारा क्या होता है, स्ट्रेटेजिक फोकस होता है. यू आर लुकिंग ऑन द लॉन्ग रन एंड यू आर लुकिंग एट द माइक्रो इकोनॉमिक लीवर्स. अब अगर आप ये देखें कि आपका जो वॉल्यूम कंसोलिडेशन है, टफ वेंडर नेगोशिएशंस हैं, कंप्लायंस इश्यूज आ गए, टिपिकल परचेजिंग रिजल्ट, एलिमिनेशन ऑफ लो लेवल इंटरमीडिएट्स को आप निकाल दिया, अनबंडलिंग द प्राइस, डिमांड मैनेजमेंट, वेंडर मार्जिन एनालिसिस एंड वर्ल्ड क्लास सोर्सिंग रिजल्ट. ये आपके क्या आ रहे हैं, जो छोटे छोटे ये आप क्या कर रहे हैं, आपके ट्रेडिशनल. वर्ल्ड क्लास सोर्सिंग रिजल्ट ने आपको टोटल आपको दे दिया 27%. बाकियों का आप देख लें क्या क्या रिजल्ट है, 3%, 7%, -4%. उसने डिफरेंट ये जो चीज़ें बताई हुई हैं कि आप अगर ये टैक्टिकल फोकस रखते हैं कि जी अब मैंने वो वेंडर नेगोशिएशन कर, लेकिन अगर आपने अच्छी वर्ल्ड क्लास सोर्सिंग की हुई तो दैट गिव्स यू 27% रिजल्ट. सो देयरफॉर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि अब इस वक्त अगर आप ये टैक्टिकल टैक्टिक्स के साथ जाते हैं तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. अगर आप इंसानों को ऐड भी कर लें, आई डोंट थिंक सो कि जी उसका इतना इम्पैक्ट है जितना आपका 27 और ये आपका जो आ जाता है स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग का आपको ज़्यादा बेनिफिट आता है, ठीक है. नाउ देयर आर 7 डायमेंशंस. अगर आप कहते हैं कि जी मैं वर्ल्ड क्लास प्रोक्योरमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, किसी भी ऑपरेशंस के अंदर प्रोक्योरमेंट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट. सो हाउ यू डू इट, ठीक है, व्हाट वी आर एक्चुअली लुकिंग इनटू योर वर्ल्ड क्लास प्रोक्योरमेंट.
अब वर्ल्ड क्लास प्रोक्योरमेंट को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उसकी 7 डायमेंशंस हैं. नंबर 1 इज़ योर प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी, नंबर 2 इज़ योर स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग, नंबर 3 इज़ योर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, नंबर 4 इज़ योर supplier management, number 5 is your information management, number 6 is your organization, and number 7 is your performance management. Now let's talk one by one about it. ठीक है, पहला क्या आ जाता है कि जी आपने अगर इस डायमेंशंस में देखना है कि आप किस तरीके से बेहतरीन प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं. नंबर 1 इज़ योर procurement strategy. You have to develop a procurement strategy, and basically what we are looking into कि हमारी जो procurement strategy है, how it is overall linked with your corporate strategy. ठीक है, how procurement strategy is linked into overall corporate strategy. This is what we are looking into our procurement strategy. Number 2, that is your strategic sourcing, जो भी हमने पीछे पढ़ा है, the systematic method by which products and suppliers are sourced. कि आपने किस तरीके से उनको sourcing किया है. You can't just do randomly. There is a complete process for that. There is some checks and balances. There is a things to do list जो आपने करनी है, फिर जाके आप अपने suppliers को और उन products को आप accept करते हैं. Then comes your procurement process, how the daily purchasing and activities occur. मोस्टली होता है कि कहीं पे अगर आप कहते हैं ना, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस देखनी है या एफिशिएंसी देखनी है, या अगर आपने देखना है कि जी हाउ गुड इज ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ मेकिंग देयर एम्प्लॉयज कंफर्टेबल, तो आजकल एक जो पैरामीटर आ रहा है, दैट इज बेसिकली अ प्रोक्योरमेंट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग इन अ यूनिवर्सिटी, आई से कि मुझे को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए एंड इट टेक्स लाइक 3 months. Now that is a very slow procurement process. Similarly, आप कहते हैं कि मुझे कंप्यूटर चाहिए, वो कहते हैं चलिए हम कंप्यूटर की ऐड देंगे, then we have bids, क्योंकि हमारा प्रोसेस ये है. Again, a very laborious thing. So employers won't be happy with that. अब आपका जो डेली एक्टिविटीज़ का प्रोक्योरमेंट होता है, दैट नीड्स टू बी फास्ट, क्योंकि अगर आपने प्रोक्योरमेंट अगर आपका स्लो है तो इट एक्चुअली अफेक्ट्स योर ऑपरेशंस, क्योंकि आप एंड यू कैन नॉट जस्ट कॉम्प्रोमाइज़ योर ऑपरेशंस, क्योंकि आपका प्रोक्योरमेंट क्या है, स्लो है. इसीलिए हमने पहले क्या बताया, प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपके कॉर्पोरेट गोल्स उसके साथ कैसे अचीव हो रहे हैं. अब प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या होना चाहिए, दैट नीड्स टू बी सिंपल. जितना हम कॉम्प्लिकेट करेंगे अपने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को, उतनी ही ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इनएफिशिएंसी आ चुकी है. एम्प्लॉयज़ आर नॉट गोइंग टू वर्क, दे वुड फील के भी बिकॉज एक बड़ा नोशन एक आता है कि एम्प्लॉयज़ आपके कहते हैं कि जी वी आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, हमें अपने पर्सनल यूज़ के लिए ये चीज़ें नहीं चाहिए. बट अगर ये चीज़ें नहीं हैं, देन ऑब्वियसली योर वर्क इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड विद दैट. बट समहाउ प्रोक्योरमेंट में यूजुअली आपका जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट कर रहा था, दे आर वेरी लेजी, दे आर वेरी स्लो, दे फील कि जी हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए, which is not wrong, but ठीक है, which is absolutely right. That is part of the process. But the thing is that once you are looking into, once you are saying कि जी मेरा procurement process बहुत अच्छा है, या मैंने procurement process के अंदर black and white, या मैंने उसके अंदर accountability, transparency लेके आनी है, but remember it is affecting your organization. ठीक है, instead of ईजिंग, और जो मैंने पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मोस्टली जो चीज़ें देखी हैं, व्हाट दे डू इज़ दैट दे हैव देयर आर, वो इस किस्म की एक एनवायरनमेंट बना देते हैं दैट द एम्प्लॉयज़ फील दैट ओके द प्रोक्योरमेंट पीपल और दे डू नॉट ट्रस्ट अस. अब अगर आप यूएन की देखें, वर्ल्ड बैंक की देखें, उनके इतनी बेहतरीन और स्विफ्ट प्रोक्योरमेंट होती है दैट यू जस्ट गिव देम एन ईमेल, या आपने ऑनलाइन उनको चीज़ कह दी, वो जनाब आपको चीज़ आ जाती है, एंड लेटर ऑन आपको ने जो स्पेसिफिकेशंस आपने चेक किए एंड यू सेड ओके दैट्स फाइन. लेकिन अगर आप यहाँ पे देख लें मिलिट्री प्रोक्योरमेंट्स, यूनिवर्सिटी प्रोक्योरमेंट, उसके बाद आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में विच आर मे बी होम ग्रोन या जिनके एज सच प्रोसीजर्स डेवलप नहीं हुए हुए, वहाँ पे पीपल हैव स्टॉप्ड आस्किंग फॉर थिंग्स. वो कहते हैं हम खुद ही ले लेंगे. आई हैड एन एक्सपीरियंस विद वन ऑफ द गाइज, ही वॉज सम जैसे कहते हैं प्रोक्योरमेंट का अपने आप को गुरु कहा करता था, एंड द फॉर्म दैट ही डिज़ाइंड, उसने कहा जी इतने दिन लगेंगे, आप हमें सैम्पल्स ला के दें, एंड बिलीव मी पीपल वर फेड अप ऑफ हिम एंड स्टिल दे आर. बट स्ट्रैटेजी क्या थी कि लोगों ने कहा जी सॉरी वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू. अब ये जो चीज़ होती है,
एक साइड पे आप उसको कह रहे हैं कि जी हमारी ऑर्गेनाइज ऑपरेशंस बड़ी कमाल की हो जाए, ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, लोग कहते हैं कि ये गलत ही हो जाए, हमने नहीं करना। स्टिल रिमेंबर, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी मुझे 5 मीटर तार चाहिए, नाउ इट्स अ स्मॉल आइटम, मुझे तार चाहिए, सो उन्होंने 5 की जगह उन्होंने कहा जी, बाद में उन्होंने कहा जी 7 करते हैं, एंड देयर वाज अ ह्यूज ह्यू एंड क्राई कि जी आपने मांगी 5 थी, अब 7 आप क्या कर रहे हैं, 2 मीटर तार कहाँ पे, जस्ट ऑन 2 मीटर्स। एंड लेटर ऑन द बिग मीटिंग्स वर कॉल्ड, आई वाज पार्ट ऑफ दैट, वो जिसे कहते हैं मीटिंग प्रोसेस, और उसने कहा कि जी 2 मीटर इसलिए होती है कि अगर अब 5 मीटर तो एग्जैक्ट उसमें लगनी है, तो 2 मीटर्स इसलिए होती है ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा लगनी हो या कोई तार ज़ाया हो जाए तो देन एटलीस्ट कंपनसेशन उससे हो जाए, दोबारा फिर से हमें 5 मीटर ना मंगवानी पड़े। बट ये जो पेटी इश्यूज में जब हम फंस जाते हैं प्रोक्योरमेंट के, देन it actually affects not just your operations, it affects the whole performance of your organization. और मैंने जो अभी तक पाया, what my analysis has been that okay, there seems to be that okay, you are the thief and the other party who is actually procuring it. ये मैं within organization की बात कर रहा हूँ, who had sent the requisition कि जी मुझे ये चीज़ें चाहिए, they are the thieves and you are the big moral police, और आपने अपना एक moral compass बना लिया जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं कि जी मुझे ये चीज़ें चाहिए और मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, और अगर आपने मुझे चीज़ें रिक्वेस्ट करनी है इस तरीके से आपने बुलानी है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस इज कि जी वंस यू आर सेंडिंग द प्रोक्योरमेंट रिक्वेस्ट एंड यू से कि जी मुझे इस स्पेसिफिकेशन की चाहिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि जी वो कहते हैं जी आप ख़रीद लें, देन वी विल reimburse you. Now that is also one of the big hassles. अब वो क्या होता है कि once you have bought it, फिर वो कहते नहीं हमें इसका सैम्पल भी, हमें वो ओरिजिनल चीज़ दिखाएं कि आपने कहाँ पे ख़रीदी है, हमें ये भी दिखाएं कि आपने किस डेट पे ख़रीदी है, हमें बताएं कि आपने प्राइस कैसे चूज़ की थी। अगेन इट टोटली स्टॉप्स, अगेन इट टोटली डीमोटिवेट्स द पर्सन कि जो ये काम कर रहा है कि जी हु हैज़ इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू, उसने खुद ही कर लिया बिकॉज उसको जल्दी चाहिए था, नाउ ही हैज़ टू शो ऑल द रिसीट्स एंड एवरीथिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट ओके इट्स बैड, ठीक है, बट स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, जहाँ पे आपको पता है आपने ऑडिटर्स का जवाब देना होता है सारा कुछ, लेकिन लेट्स सी कि जी हमने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को सिंपल बनाना है, because if it is not simple, people are not going to demand things, and if people do not demand things, they would say I'm sorry, I don't want to, because it is a lengthy process and it just takes away all my energy, then no benefit. कहाँ पे आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के साथ आपकी प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी फिर लिंक अप हो रही है? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी सेज वी लव टू ग्रो, वी लव टू हैव जिसे कहते हैं ग्रेटेस्ट मार्केट शेयर, देन यू आर नॉट गोइंग टू हैव मार्केट शेयर। सो व्हेन वी आर लुकिंग एट द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, we need to be very diligent, we need to be very active, ठीक है ना। I have heard comments कि मुझे कंप्यूटर चाहिए था, कल मैंने रिक्वेस्ट की, आज सुबह मेरा कंप्यूटर आ गया। It doesn't mean कि वो ट्रस्ट नहीं करते। The thing is कि उनके प्रोसेस इतने streamlined हुए हैं that it just happens very quickly, ठीक है ना। आपको बिड्स नहीं भेजनी पड़ती, आपको ये नहीं करना पड़ता। So इन लॉज को, इन रूल्स और इन रेगुलेशंस को हमने क्या करना होता है, सिंपलर बनाना होता है। Then comes your after procurement process, then comes your supplier management. How suppliers are managed, what kind of relationships we are keeping, how they are created, and communications coordinated. अब एज ए सेड कि जापानीज कहते हैं कि जी आप सप्लायर्स को क्या करें, पार्टनर्स बना लें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट दे आर द पार्टनर्स, इट्स बेसिकली कि जो विनिंग, जो लूजिंग, जो हैप्पी मोमेंट्स, जो सैड मोमेंट्स, उसमें आपके सप्लायर्स भी क्या होते हैं, पार्ट एंड पार्सल होते हैं। अगर आप सप्लायर के साथ एक कोऑर्डिनेटेड रिलेशनशिप नहीं रखते तो सप्लायर डजंट केयर फॉर यू। सप्लायर का काम है कि आपने उसमें सिर्फ मटीरियल चाहिए, और अगर आपको कभी फ्लक्चुएशंस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल बुल विप्स हो जाते हैं, तो सप्लायर ने वो आपको चीज़ें पूरी करके देनी होती हैं। अगर कोई एक्सटर्नल कोई वो हो गया है, क्लैमिटी आ गई है, कोई फ्लड आ गया है, तो इफ़ यू वांट टू हैव योर रॉ मटेरियल्स इन स्मूथ, वो जिसे कहते हैं उनकी सप्लाई रहे, तो आपका सप्लायर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आजकल जो मॉडर्न सप्लाई चेन्स आ रही हैं उसमें तो ये भी वो कहते हैं दैट ओके यू नीड टू
इन्फॉर्म, कीप योर सप्लायर इन द लूप कि जैसे जैसे आपकी इन्वेंट्री कम होती जा रही वैसे वैसे आपका सप्लायर क्या करे, आपको चीज़ें साथ साथ बताता रहे कि ओके नाउ दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। आपके सप्लायर को पता होना चाहिए कि जी आपका ऑर्डर कब तक ख़त्म हो रहा है, सो दैट ही कैन स्टार्ट रीफिलिंग योर इन्वेंट्री। क्योंकि अगर आपकी इन्वेंट्री में अगर आपका वो मटेरियल नहीं आता या इफ़ योर इन्वेंट्री स्टार्ट्स हैविंग फ्लक्चुएशंस, so you have to ask your supplier to fulfill it, and if your supplier isn't in the communication loop, it's not going to be fulfilled. So therefore your supplier management is very important। और ये जो आपके procurement वाले होते हैं, अगेन इसी डिपार्टमेंट ने आपके suppliers के साथ क्या करना होता है, रिलेशनशिप रखनी होती है। Then comes your information management। information management क्या होती है, आजकल क्योंकि हम वो जो खातों वाला पेपर वर्क अब हमने ख़त्म कर दिया, ख़त्म तो नहीं किया, कम कर दिया। नाउ मोस्ट ऑफ द procurements are e-procurements। तो आपकी information किस तरीके से मैनेज हो रही है, how IT and e-procurement tools are being used to simplify and improve the overall process। Remember जो हम पीछे अभी हम process improvement की बात कर रहे थे, procurement is very important in terms of your process improvement। procurement जितना simpler होगा, आप यकीन जाने आपकी वो जो है organizational performance उतनी best होगी। procurement जिन organization का जितना बुरा होता है वहाँ पे वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। टॉक अबाउट द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, टॉक अबाउट द गवर्नमेंट दीज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस टेक्स लाइक 3-4 months, इवन साल भी लग जाता है इन सम केसेस अगर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। बट दैट्स व्हेयर द एफिशिएंसी इज़ वेरी लो। प्राइवेट में वो होता है जी आपने चीज़ें भेजी, रिक्वेजिशन अगले दिन आ गई एंड यू स्टार्ट डूइंग वर्क। वहाँ पे आपका इंतज़ार ही रह रहा होता है कि जी कब तक आपका सामान आएगा, देन यू विल स्टार्ट वर्किंग। सो nowadays we have to see कि आपकी जो information management है वो कैसी है। Are you still doing the manual work या आपकी e-procurement हो गई क्या? Like I remember at the World Bank, वहाँ पे क्या होता था, e-procurement आपने बस email भेजी और आपको चीज़ आपको मिल जाया करती थी, आपने रिक्वेस्ट सिर्फ e-forms के थ्रू आप कर लिया करते। सो दैट इज़ बेसिकली और e-procurement। आगे से जो आपका procurement डिपार्टमेंट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी एफिशिएंट। उसने भी आपके सप्लायर को ई रिक्वेस्ट भेजी और उसने आपको मटेरियल सारा भेज दिया। देन कम्स योर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज़ योर सिक्स्थ डायमेंशन। अब सिक्स डायमेंशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देख रहे होते हैं, हाउ प्रोक्योरमेंट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, रिसोर्स्ड एंड ट्रेंड, कि भी आपने किस तरीके से इस प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को किया हुआ। एंड लास्ट आपकी क्या आ जाती है, इज योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एंड इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट व्हाट वी आर लुकिंग इज हाउ परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एंड ट्रैक्ड। क्योंकि आप प्रोसेस को आपने अच्छा कर दिया है तो आपने उसकी मेजरमेंट तो करनी है ना, कि पहले it you would take 5 business days, now it takes 2 business days, ठीक है, from your प्रोडक्शन टू कंजम्पशन। जितनी आपकी बेहतर होती है प्रोक्योरमेंट उतनी ज़्यादा आपकी ऑपरेशंस क्या होती जाएगी, एफिशिएंट होती जाएगी। नाउ क्रॉस फंक्शनल टीम्स देयरफॉर नीड टू बी एम्प्लॉयड टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट। अब क्या होता है कि जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपकी डिफरेंट टीम्स काम कर रही होती हैं। आपके इंजीनियर्स होते हैं, परचेजिंग एजेंट्स होते हैं, मटीरियल ऑफिसर्स होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था कि जो इंजीनियर ने परचेजिंग एजेंट को कहा, परचेजिंग एजेंट ने मटीरियल ऑफिसर को कहा, और आपकी दे वर कैरेक्टराइज्ड बाय फंक्शनल रिस्पांसिबिलिटी, देयर वाज नो कॉमन फोकस एंड लेंथी साइकिल टाइम। इफ यू सी इस पिक्चर के अंदर आप देखोगे कि देयर आर वॉल्स के इंजीनियर परचेजिंग एजेंट के साथ सिर्फ उसने रिक्वेस्ट भेजी हुई, देन ही इज़ वेटिंग। परचेजिंग एजेंट ने मटीरियल ऑफिसर को कहा हुआ, देन ही इज़ वेटिंग, एंड देयर आर वॉल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन दैम। अब किस तरह इसको स्विफ्ट किया जा सकता है, स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या कहती है, वी नीड टू हैव क्रॉस फंक्शनल टीम्स कि सारे आपस में मिल के साइमल्टेनियसली काम कर रहे हो। इंजीनियर्स प्लस, अब वर्ड वॉल नहीं रखी कि दे आर प्लस प्लस प्लस, और वो क्या कर रहे हैं, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और मार्केटिंग, ये सारे काम इकट्ठे हो रहे हैं। इन दिस वे आपकी प्रोक्योरमेंट क्या हो जाती है, मच बेटर हो जाती है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग अप्रोच। नंबर 1, देयर आर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉट इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा काम सिर्फ यही है और इससे आगे मैंने और काम नहीं करना। There are joint responsibilities. Number 2, communication is much more effective. Communication is much more enhanced. Number 3, there's a consistent supplier interface. Supplier आपका उस phase उस interface में रहता है, and your वो जो आपका cycle time होता है that is very short. And remember, जैसे ही आपका cycle time छोटा हो गया तो आपका क्या हुआ, process के अंदर improvement automatically आपकी आ जाती है। So
The maturity of a procurement organization can be defined using the following model. आप किस तरीके से मॉडल यूज करते हैं? अब ये 3 से 5 साल यूजली इंडिया लगते हैं in order to have a very good procurement model. अब क्या होता है? नंबर 1, if you see stage 1 क्या आती है आपकी? reacting. मार्केट में कुछ आई, आपने कोई चीज़ लेनी है एंड दिस इज रिएक्शन स्टेज, और आपने क्या किया? बाय किया. ठीक है, स्टेज 1 इज बेसिकली योर रिएक्टिंग. अब इसमें रिएक्टिंग में क्या हो रहा होता है, या आपके बाइंग की स्टेज में क्या हो रही होती है? बाइंग में आकर था नीड्स नॉट एंटिसिपेटेड, बिकॉज आप बाय कर लेते हैं, डेटा नॉट अवेलेबल और यूज्ड. नो ऑर्गेनाइजेशंस वाइड प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी, लार्ज सप्लायर बेस. कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है. उसके बाद इट्स बेसिकली ट्रांजैक्शन फोकस्ड. आपने पैसे दिए, आपने मटेरियल ले लिया. लो स्किल्स रिसोर्स एंड लिटिल करियर प्लानिंग. आपके इसके अंदर कोई स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर जस्ट बाइंग द थिंग्स. नंबर 2, बाइंग से अब आप किस में आ जाते हैं? परचेजिंग में. परचेजिंग, अब ये स्टेज कौन सी होगी है? पहली क्या सी थी? रिएक्शन. नंबर 2 स्टेज इज यूर डेवलपिंग. नाउ यू आर डेवलपिंग इट. इसके अंदर क्या आ जाता है? सम कैटेगरी ऑफ स्ट्रैटेजी क्रिएशन, बट नॉट कंपनी वाइड एंड नॉट कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली. अब कुछ थोड़ी सी आपने स्ट्रैटेजी बनाना शुरू की, पूरी कंपनी में वो कम्युनिकेट नहीं हुई और ना ही उसका कोई नामो निशान है. Then comes volume leverage through effective use of competition across strategy. Track commercial measure of performance targets for saving. Technology enables. आप टेक्नोलॉजी का यूज़ किया. Select supplier base consolidation and training and recognition skill required. इसके अंदर आपकी ट्रेनिंग. So that is purchasing. Then comes stage number 3. अब आप डेवलपिंग से किस में आ गए हैं? एडवांसिंग में आ गए हैं. और एडवांसिंग के अंदर अब क्या हो रही है? आपकी पार्टनरशिप हो रही है. अब इन व्हाट यू आर डूइंग इन पार्टनरशिप, देयर इज अ फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस. ठीक है, यू फोकस ऑन सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड शेयरिंग बिजनेस प्लान्स. लॉन्ग टर्म टाइम आपका अब लॉन्ग टर्म हो गया है. कोलैबोरेशन ऑन कॉस्ट इंप्रूवमेंट एंड इंक्रीज लेवल्स ऑफ रिस्क शेयरिंग. ट्रेन एंड क्वालिफाइड रिसोर्सेज सपोर्टिंग ऑल कैटेगरीज ऑफ स्पेंड and key performance indicators are in place. So partnership is a new stage. Then comes your partnership के बाद आपकी जो stage 4 है, that is basically your high performing. High performing में अब आप क्या हो जाते हैं? partnership से भी आप एक आगे एक step चले जाते हैं, that is basically your alliance. अब alliance के अंदर क्या कर रहे हैं? Your procurement strategy अब बन गई है. Procurement strategy is aligned with your corporate strategy. उसके बाद suppliers are selected for strategic fit and deliver कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. क्या अब आप सप्लायर्स चूज करते हैं, आपने क्राइटेरियंस बना लिए हैं दैट विच एक्चुअली मैचेस योर ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड. देन डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग. अब नाउ यू आर यूजिंग डेटा. इफ़ यू रिमेंबर जब रिएक्टिंग वाली स्टेज थी उसके अंदर कोई डेटा हम यूज़ नहीं कर रहे थे. फुल सपोर्ट ओवर परचेजिंग साइकिल. एंड देन रिस्क शेयरिंग इज हायर एंड ऑर्गेनाइजेशंस co-located and jointly financed. Business planning optimizes all commercial aspects like taxes, investment, people. So alliance is much more stronger as compared to your partnership. Then आपकी क्या आ जाती है? Last stage, that is basically your pioneering. ठीक है, pioneering के अंदर आप क्या कर रहे हैं? You are doing the world class procurement. अब world class procurement में क्या है? Strategy fully supports the corporate goals and are driven by corporate consensus. Managing the supplier risk while leveraging the competitive strengths. Nurturing supplier relationship. Supplier base share improvement target for cost and innovation value addition. Fully visibility and trust across external value chain. Procurement maintains a rationalized supplier network that delivers technology, knowledge, product of services and service quality superior to competitors. So it's a very interesting phase जो कि 3 से 5 साल लेता है. You can't just say कि जो मैंने एकदम world class procurement कर देनी है. We have to assess कि हम इस point पे अपनी organization से हम कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं कि where we would actually strategically fit. Either it is buying, purchasing, partnership, alliance या world class procurement. Either it is reacting, it is developing, advancing, high performing या आपकी pioneering है. हमारा जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए जब हम प्रोक्योरमेंट में जा रहे होते हैं दैट इज बेसिकली योर पाइनियरिंग.
ठीक है, कि जी हमने वर्ल्ड क्लास प्रोक्योरमेंट करनी है, वेयर हमें पता हो कि हमारी जो प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी है दैट इज़ वेरी मच अलाइंड विद योर corporate strategy. So this is basically कि किस तरीके से organizations के procurement department mature होते हैं. Now for you, you can easily assess कि जी हम अपनी कहाँ पे हैं, हम किस किस्म के हैं. Either we are actually just purchasing या partnership. Mostly जो मैंने अभी देखा है either we are purchasing या partnership में होते हैं. Alliance या जो world class procurement पे है, I don't see that kind of environment अभी यहाँ पे in Pakistan. Deloitte के बारे में बताया था कि इट्स वन ऑफ द टॉप ऑर्गेनाइजेशंस, और उसने क्या बनाया हुआ है, इट्स हैज अ 6 स्टेप मेथडोलॉजी. अब 6 स्टेप मेथडोलॉजी के अंदर वो क्या करता है, डायग्नोज द अपॉर्चुनिटी, डिजाइन द प्रोग्राम, ये 2 काम वो करता है. अब इसको करने के लिए क्या करता है, देयर आर 6 स्टेप्स. नंबर 1 असेस अपॉर्चुनिटी, नंबर 2 असेस इंटरनल सप्लाई चेन, नंबर 3 असेस सप्लाई मार्केट, डेवलप सोर्सिंग स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंट सोर्सिंग स्ट्रैटेजी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज, यानी टॉप से बॉटम तक वो स्ट्रैटेजी आप क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं. नाउ की चेंज लीडरशिप फंडामेंटल्स आर नेसेसरी थ्रू आउट implementation of the methodology to ensure successful results. Your persons who are actually implementing it, they need to be really dynamic. अब क्या होना चाहिए, change leadership के अंदर वो क्या करते हैं, to bring the dynamicity, develop vision and strategy, enroll the stakeholders, communicate your vision and strategy to them, then redesign the infrastructure, measure their performance and develop new values, skills and behaviors. ये अगर आप काम कर रहे हैं, ये क्या है, आपकी चेंज लीडरशिप है कि आप लीडरशिप को किस तरीके से डायनामिक तरीके से अप्लाई करते हैं. एंड यू एक्चुअली, इट्स नॉट ब्यूरोक्रेटिक, इट्स नॉट टॉप डाउन, इट्स जस्ट बॉटम अप. नाउ नंबर 1, when we are saying that assessing the opportunity के अंदर there are 6 आपने actions करना है. Number 1 develop team character, number 2 identify your stakeholders, उसके बाद document size of buy, document your inventory, stratify the buy and communicate team scope. Once you have done those actions, अब आपको outcomes क्या मिलते हैं, टीम चार्टर आपको मिलेगा, करंट आपको स्टेक होल्डर्स का पता चल जाता है, ओवरव्यू ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट्स आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक सोर्सिंग अपॉर्चुनिटीज, देन इंटर्नल इनिशियल सोर्सिंग टीम या कम्युनिकेशन प्लान, और आपको स्टेक होल्डर बाय इन टू प्रोग्राम स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज आपको पता चल जाती हैं. सो नंबर 1 इज योर असेस अपॉर्चुनिटी. The data collected can lead the strategic sourcing teams to identify the quick hits. कि हमने जल्दी कहाँ पे कौन से gaps को fill करना है. Quick hits are the low hanging fruit that can provide. जो आपके low hanging fruits हैं, जो आपको जल्दी achieve कर सकते हैं, वो आपके उनको हम कहते हैं quick hits. Instant saving to the company, credibility to the work of the team, building support for further activity. Early on in the process, opportunities may arise that can be acted upon by the sourcing team or separate initiative to capture cost and process saving right away. यानी ये आपने जल्दी, the moment you have assessed it, तो ये जो आपके quick hits होती हैं आप जल्दी करते हैं. Then number 2, assess your internal supply chain. Assess your internal supply chain के अंदर आपने देखना होता है what are your demand drivers. फिर उनकी perform specification review, perform specification gap analysis. उसके बाद perform specification standardization review, perform supplier specification review, identify all the total cost, map the current process steps, evaluate effectiveness of the current process, determine total cost of process, benchmark total cost of process and identify process opportunities. ये आप सारे actions लेते हैं when you are actually analyzing your internal supply chain. अब इससे आपका outcomes क्या हो जाता है, आपको एकदम पता चल जाता है कि what is your customer expecting, ठीक है, and what are his requirements. Then list of current and future internal product and service requirements. आपको ये पता चल जाता है कि जी अभी मेरे future needs क्या हैं. Then list of successful practices being used outside the enterprise. या एक किस्म के जो आप SWOT कर रहे होते हैं. Then detailed specifications review. उसके बाद internal supply interfaces that begin supplier selection process. उसके बाद आपका क्या आ जाता है, डिटेल्ड प्रोसेस मैप ऑफ योर इंटरनल सप्लाई चेन प्रोसेस, कि आपका इंटरनली जो आपका सप्लाई चेन का प्रोसेस है वो कैसा है, और लास्ट आपका क्या आ जाता है, टोटल कॉस्ट एनालिसिस आपको पता चल जाता है. अब आपने ये प्रोसेस मैपिंग कैसे करनी है. व्हेन एनालाइजिंग द प्रोसेस मैप्स, लुक फॉर रीवर्क,
redundant activities, excessive work, process handcuffs and corrective actions for the areas of for improvement. और ये आपने क्या किया हुआ है? Requesting, ordering, receiving and disposition. ये आपके different processes हैं. Always map process as it actually occurs, not as it should occur. जिस तरीके से जब आप प्रोसेस मैपिंग कर रहे होते हैं कि जो हो रहा है आपने उसको मैप करना होता है, ठीक है. यूटिलाइज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन पॉसिबल. पूछ के ना करें, खुद ही ऑब्जर्व करें. There may be several maps to account for variations by location or commodity, obviously. You will not often encounter sub-processes within larger processes. And the flow chart should be understandable to non-users of the process. ठीक है. और एक्चुअल जो मैप्स होते हैं दे आर इन ग्रेट डिटेल. जब मैं सप्लाई चेन की जब ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, सो बेसिकली people know the problems but they don't know where is the problem. So मैं क्या कहता हूँ, I always say कि okay, draw your supply chain. कहाँ से ऑर्डर लिया, कितना टाइम लगा, कितने दिन लगे, कौन से डॉक्यूमेंट सामने दिए, होते and then once ये जो आपका प्रोसेस मैप आपका बन जाता है, then it's so easy, so interesting. अगर आप ये करके देखें, you will enjoy it. कि आपको नज़र आएगा कि भी वाओ, यहाँ पे मैं इतने ज़्यादा दिन वेस्ट करता हूँ, ये मुझे इतने टाइम में पैसे देता है, इन चीज़ों का मैं किस तरीके से करता हूँ. द प्रॉब्लम इज़ कि हमने कभी उसको ड्रॉ किया ही नहीं होता, हमने उसको एनालाइज किया ही नहीं होता, हमने कभी उसको देखा ही नहीं. हम समझते हैं कि दिस आर नॉर्मल रूटीन, लेट्स नॉट ड्रॉ इट. बट वंस यू ड्रॉ इट, देन इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, इट्स अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी दैट यू कैन ईजी डेवलप. इसलिए वो होता है ना कि पहले अब 3 से 5 साल लगते हैं इन ऑर्डर टू गो आउट फॉर द वर्ल्ड क्लास प्रोक्योरमेंट. देन स्टेप नंबर 3, assess the supply markets. आपने कहाँ से जो सामान लेना, जो procure करना है, उनको आप assess करते हैं. Identify potential sources of supply, evaluate different industries, identify viable sources of supply, perform supplier assessments, perform supplier comparisons, identify supplier opportunities. अब इससे आपको क्या मिल जाता है? आपको successful procurement practices मिल जाती हैं which are being used outside the organization, list of viable suppliers, initial supplier assessment and comparative analysis, and list of best performing suppliers. उसके बाद some key tools for supplier market evaluation. कौन से आप यूज़ कर सकते हैं? नंबर 1 is 5 forces model. ये वही माइकल पॉटर का जो मॉडल है जो हमने पहले पढ़ा था. Useful for understanding relative bargaining power in a category. Who sets the price, you or your suppliers? ये आप करते हैं. इसके अंदर आपके potential entrants होते हैं, substitutes होते हैं, suppliers होते हैं और आपके customers होते हैं और अंदर आपकी industry driverity चल रही होती है. सप्लायर वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली टेल्स यू कि जी आपके सप्लायर की क्या पोजीशन है और क्या आपको पोटेंशियल सेविंग्स मिलती हैं. सोर्सेज ऑफ डाटा इंक्लूड सप्लायर्स, पब्लिक फाइनेंशियल डाटा, इंडस्ट्री और रिपोर्ट्स. उसके बाद बेसिकली जब आप ये वैल्यू चेन कर रहे होते हैं, आपको पता चल रहा होता है कि जी कैसे कैसे आपकी प्राइस इंक्रीज हो रही है. Then comes your step number 4. Step 4 में आप क्या करते हैं? Develop sourcing strategy. Now this is after doing all the analysis. Now you are developing your strategy. अब इसके अंदर आप क्या करते हैं? Reconfirm your scope. जो activity हमने करनी होती है, that is basically you reconfirm your scope, determine desired outcomes, compile opportunities, brainstorm process enhancement and supply strategy, test process strategy and solutions, test supply strategies and solutions, draft an action plan and communicate those strategies. ये आपने सारे actions करने हैं once you want to draft your sourcing strategy. अब आपके outcomes क्या हो जाएंगे? Final scope of the work statement, enhance internal supply chain process strategy, sourcing strategy to meet objectives and the desired outcomes, understanding of how the internal stakeholders will be impacted, क्योंकि obviously change तो आएगा ना once you have a comprehensive sourcing strategy. Then management approval of process enhancement and supplier strategies. So step 4 के अंदर आपने अपनी क्या बना ली है? Sourcing strategy. You have actually formulated your sourcing strategy. अब spectrum of procurement, that is coming in your step number 4, procurement strategies. आपकी जो मिडिल ग्राउंड है दैट इज ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. आपके जो इस साइड पे जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज लेस डिफिकल्ट और जो इस साइड पे है दैट इज बेसिकली मोर डिफिकल्ट. क्या आप कर सकते हैं? वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है? कंसोलिडेशन ऑफ परचेज्ड वॉल्यूम टू इंक्रीज नेगोशिएशन लेवरेज. दूसरा क्या हो सकता है? डिमांड मैनेजमेंट एक्शंस, policy changes that reduce demand or for supply of product or any substitutes.
Then best price evaluation, disciplined process, aggressively renegotiating all the selected supplier prices and contracts and agreements based on the competitive bidding or other techniques. ये है less difficult. फिर आपकी आ जाती है ease of implement, जो ज़्यादा difficult है. Global sourcing, expansion of supplier base on the broader, sometimes international scale पे आप चल जाते हैं. GE का, as I was telling you the example. Product specification improvement, ना अब आप ज़्यादा specific होते जा रहे हैं. Joint process improvement, कि आपका जो supplier है, customer teams हैं, वो help करती हैं आपको re-engineering करना. और relationship structuring, very difficult. Structuring of long-term supplier customer partnerships or alliances to achieve integrated new approaches to the business, कि आप उनको involve करते हैं, which takes time. पहली दफ़ा नहीं आपके suppliers आपको trust करेंगे. There is always a trust deficit. अब आ जाता है methods for defining the sourcing strategy. अब sourcing strategy क्या होती है? This sourcing strategy defines both commercial relationships with the supply base and internal supply management process. जो पहला वाला है आपका, जो black में आपको नजर आता है, that is your supplier strategy. एक साइड पे आपका commercial relationship है, either you buy market, manage risk, leverage है या partnering है. Difficulty of obtaining supply and strategic importance, high low, low high, वो आपका. सेकेंड स्टेज पे आपकी आ जाती है सप्लाई मैनेजमेंट प्रोसेस. अब आपके इंटरनल प्रोसीजर्स हैं, सिंप्लीफाई हैं, डिसेंट्रलाइजिंग ऑर्डर है, सेंट्रलाइज एग्जीक्यूशन है, या आपकी क्रॉस फंक्शनल है. स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस इज ऑन द वर्टिकल साइड एंड योर हॉरिजॉन्टल साइड पे आपकी क्या आ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बाय. अब इनको आप डिफाइन करके यू कैन हैव योर सप्लायर स्ट्रैटेजी एंड यू कैन हैव योर सप्लाइंग मैनेजमेंट प्रोसेस. अब आपकी जब सप्लाइंग सोर्सिंग स्ट्रैटेजी बन गई, नाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट. इम्प्लीमेंटिंग में क्या करेंगे, हमारे डिफरेंट एक्शंस हैं. डेवलप सप्लायर सोलिसिटेशन स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंट सप्लायर सोलिसिटेशन स्ट्रैटेजी, कंडक्ट सप्लायर नेगोशिएशन, डेवलप प्रोसेस एनहांसमेंट स्ट्रैटेजी, ऑब्टेन फाइनल अप्रूवल्स और फिर अवॉर्ड द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट अब आपने इस स्टेज पे देना होता है. जो आपके डिफरेंट आपके आउटकम्स होंगे, यू कैन रीड इट, इट्स नॉट डिफिकल्ट. बेसिकली यू आर एक्चुअली इनटू द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, जहाँ पे आप उनको क्या कर देते हैं, अपने सप्लायर्स को चूज करके आप उनको कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं. लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया एसोसिएटेड वेट्स इज रिक्वायर्ड टू असेस द पोटेंशियल सप्लायर्स. अब आपने जब अपने सप्लायर को अपना असेस करना है कि किस बेसिस पे आप उसको अपना सप्लायर रख रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर असेसिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस, ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट. और ये आपने डिफरेंट वेटेजेस रखे हुए हैं कि जी 35% मैं उसकी क्वालिटी को रखता हूँ, सर्विस उसको 25% देता हूँ, डिलीवरी 15% एंड कॉस्ट 30%. कौन कौन से इश्यूज इसमें एड्रेस होते हैं? अगर आपने क्वालिटी को देखना तो क्वालिटीज में थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, एवैल्यूएशन ऑफ प्रीएम्प्टिव mint and evaluation of quality assurance procedures. Service में आप देखते हैं inventory management, electronic interface capabilities, value added services. उसके बाद delivery में what you are looking into is your order cycle time and your rush order procedures. और cost में आप देखते हो क्या क्या prices और क्या क्या आपको discount दी जा रही है. Then based on market analysis and supplier information collected, ये हैं आपके ईच सप्लायर के. चार आपके होते हैं कि कितने आपका नंबर ऑफ सप्लायर्स कितने हैं और आपके सप्लायर्स का टर्नओवर कितना है. और इसके अंदर आप क्या देखते हैं, चार आपके आइटम्स आते हैं. नंबर 1 इज योर बॉटलनेक आइटम्स, नंबर 2 इज योर स्ट्रेटेजिक आइटम्स, नंबर 3 इज योर नॉन क्रिटिकल आइटम्स और नंबर 4 इज योर लेवरेज आइटम्स. ठीक है, ये आप इम्प्लीमेंटिंग जब आप सोर्सिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं. लास्ट स्टेप आपका आ जाता है नंबर 6, दैट इज बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइज योर सोर्सिंग स्ट्रैटेजी. आपने उसको प्रॉपरली आप उसको लेके आते हो, यू मॉनिटर इट, आपकी उसकी इवैल्यूएशन होती है, आप उसको कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी से लिंक अप करते हो एंड यू एक्चुअली एजुकेट अदर पीपल कि भी ये हमारे वो हैं सोर्सिंग स्ट्रैटेजी है. 2 criteria determine supplier position within the stratification, market complexity and strategic importance. ये आपने देखा horizontal axis पे आपका है strategic importance of the product और vertical axis पे क्या है, market complexity. इसके 3 लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. लेवल 1 के ऊपर आपका क्या, लेवल 3 वो एक आपका कोर पार्टनर होता है और एक आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर का आपका सप्लायर होता है. आपने बेसिकली हमारी कोशिश होती है दैट वी गो टू आवर कोर पार्टनर. सप्लायर से हमने उसको रेज अप करना होता है टू कोर पार्टनरशिप. सो
Last but not the least is basically कि जी आपका importance क्या है सबसे ज़्यादा, that is basically your teamwork. And teamwork अगर आप इस कार्टून में देख रहे हैं, it's not like that. Teamwork is basically that everyone is aligned. ये ना हो कि procurement या आपकी जब sourcing strategy बन रही हो तो आपकी corporate strategy का आपको पता ही ना हो. They have to be aligned. Otherwise आपको result ऐसा मिलेगा जैसा कि आपको इस कार्टून के अंदर नजर आ रहा है. The wrap up for today's lecture is 3 points that you have to learn when we are developing the sourcing strategy. Number 1, think strategically. Tactically nahi, think strategically. Number 2, measure your total cost. And number 3, you have to work as a team. You alone cannot run the show. You need a good team and you have to bring everyone on board, and then your strategic plan or your strategic will be sourced. Okay. Thank you very much. Till then, revise your lecture and we will see each other in lecture number 25. Hope to see you. Have a nice day. Allah Hafiz.